Good morning, all of you. Welcome to my new lecture of Method of Finding the Resultant Force in Engineering Mechanics. There are various laws used for finding out the resultant of number of force. These are parallelogram law of forces, triangle law of forces, and polygon law of forces. In last class, we discussed parallelogram law of forces. So today we discussed triangle law of forces. So let us explain triangle law of forces. Triangle law of forces का statement है, it states if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and directions by the two sides of a triangle taken in order, their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in order. That is, यदि किसी पार्टिकल पर एक साथ काम करने वाले दो फोर्सेज को क्रम में लिए गए ट्रायंगल के टू साइड्स द्वारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस में दर्शाया जाता है, तो उनके रिजल्टेंट या कह सकते हैं कि परिणाम को विपरीत क्रम में लिए गए ट्रायंगल के तीसरे पक्ष द्वारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में दर्शाया जा सकता है. In other words, we can say that if two concurrent forces are acting simultaneously on a body and are represented in magnitude and directions by the sides of a triangle taken in order, then the third side of the triangle represents the resultant of the forces in magnitude and directions taken in opposite order. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, F1 एंड F2 का जो डायरेक्शन का जो ऑर्डर है वो सेम है, लेकिन जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर है डायरेक्शन का वो क्या है, अपोजिट है. मीन्स यहाँ से ये ऐसे गया और ये इधर से ऐसे गया, लेकिन जो मेरा रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है. दैट मीन्स ये इधर से ना होके किधर से है, इधर से. मीन्स ये इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, अपोजिट है. कह सकते हैं कि यदि दो कंकरेंट फोर्सेस एक बॉडी पर एक साथ काम कर रहे हैं और क्रम में लिए गए ट्रायंगल के साइड्स द्वारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रायंगल का थर्ड साइड फोर्सेज के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करता है, जो कि विपरीत क्रम में लिया गया है. सो अब हम इसको एक एग्जांपल द्वारा एक्सप्लेन करते हैं. लेट F1 एंड F2 बी दी टू concurrent forces acting on a body. So the resultant R can be find out by using triangle law of forces both graphically and analytically. So पहले देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है. ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ वेक्टर OA एंड OB एंड OA represents force F1 and AB represents force F2. That is कह सकते हैं कि draw vector OA and OB to some scale to represents F1 and F2 respectively. So then close the triangle by joining OB and measured OB and convert it into force unit by using the same scale. This gives the value of R. That means कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, so O से A अगर मेरा F1 है और A से B जो मेरा फोर्स है वो F2 है, तो O से AB क्या देगा मेरा, OB क्या देगा मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट्स देगा. OB क्या देगा मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट्स देगा. सो ये कह रहा है कि अगर क्लोज दी ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग OB, अगर हम ट्रायंगल को OB द्वारा क्लोज करते हैं एंड OB को मेजर करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू फोर्स
unit by using the same scale. This gives the value of R. And according to triangle law of forces, इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ये होगा अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा. दैट मीन्स रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो B to O ना होके क्या होगा, O to B होगा. मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा. मीन्स F1 एंड F2 के ये अपोजिट में होगा. मीन्स अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा. मीन्स इसका होना चाहिए था B से O, लेकिन ये क्या होगा, O to B होगा. सो इस तरह से अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल मेथड, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC and let theta is the angle between F1 and F2 and alpha be the angle between F1 and resultant R. So line AB be drawn to represent force F1 and BC to represent force F2. The triangle ABC is completed by drawing the closing line AC. Line AC represents the resultant in magnitude, line of action and directions. यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे दिखा दिया. So consider a triangle ABC. Consider a triangle ABC. In this triangle, ABC, theta is the angle between F1 and F2. ये क्या है, angle between F1 and F2, and alpha equal to, let alpha is equal to angle between F1 and R. ऐसा क्या फिगर दे सकते हो. अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड F1 फोर्स. नाउ CBD क्या है, थीटा. एंड एंगल अगर CAD फाइंड करते हैं, CAD तो क्या है मेरा यहाँ पे, अल्फा. एंड तो एंगल ACB क्या होगा, एंगल ACB इक्वल टू व्हाट. वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री. सो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल CAB प्लस एंगल ACB एंगल ABC मीन्स A एंगल हो गया, B एंगल हो गया एंड C एंगल हो गया. तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री. सो मेरे पास CAB कितना है, अल्फा. ACB हमको मालूम नहीं है. एंड ABC कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा. यहाँ पे ABC कितना हो जाएगा, थीटा है, और ये टोटल कितना होता है, 180 डिग्री. सो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल मेरा 180 माइनस थीटा. सो यहाँ पे 180 माइनस थीटा मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180. सो यहाँ से एंगल ACB हम लोग को फाइंड होता है थीटा माइनस अल्फा. नाउ यूजिंग साइन रूल फ्रॉम मैथमेटिक्स से हम लोग जानते हैं कि साइन रूल क्या होता है. साइन रूल के अकॉर्डिंग इन एनी ट्रायंगल ABC, अगर हम किसी ट्रायंगल ABC में अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, मान लिया कि मेरे पास ट्रायंगल है ABC यहाँ पे. तो F1 फोर्स के सामने का एंगल क्या है, बीटा. सो F1 डिवाइडेड साइन बीटा इक्वल टू F2 डिवाइडेड साइन अल्फा, क्योंकि F2 के सामने का एंगल क्या है, अल्फा. सो F2 साइन अल्फा इक्वल टू F3 साइन थीटा. ये साइन रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास फॉर्मूला है फ्रॉम मैथमेटिक्स. सो यहाँ पे हम साइन रूल का यूज करते हैं. सो साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड साइन एंगल ACB इक्वल टू F2 डिवाइडेड साइन एंगल CAB, क्योंकि F2 के सामने का एंगल मेरा क्या है, अल्फा है, जो क्या है, CAB है. एंड F3 के सामने का एंगल क्या है, या कह सकते हैं कि R, जिसको मैंने रिजल्टेंट R लिया है, क्या है एंगल
मेरा 180 माइनस थीटा मीन्स साइन 180 माइनस थीटा। सो क्या हो जाएगा यहाँ से F1 साइन एंगल ए सी बी मैंने क्या फाइंड किया, थीटा माइनस अल्फा। सो साइन थीटा माइनस अल्फा। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी जो कि मेरे पास क्या है, अल्फा है। एंड आर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मीन्स साइन, अगर हम 180 माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होता है, साइन थीटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे मेरा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का मेरे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स हम कह सकते हैं कि इफ ए सिस्टम of three forces acting upon a body can be represented in magnitude and directions by the sides of a triangle taken in order, then the system will be in equilibrium. So friends इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लॉ एंड उसके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।